شمالی وزیرستان و کرم میں درندازی کی کوشش ناکام، فتنہ الخوارج کے 25 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی میں پاک فوج کے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس کیانی، سپاہی محمد عدیل، سپاہی شاہ جہان اور سپاہی علی اصغر شامل۔ ISPR کے مطابق سپن بام شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک، 4 خودکش بمبار شامل۔ کرم کے علاقے گھاگی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ پاکستان نے افغان طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی اور معلومات کے تبادلے کے لیے 4 تجاویز پر مشتمل حکمت عملی شامل۔ افغان عبوری حکومت کی جانب سے TTP کی نئی جگہ منتقلی کی پیشکش مسترد۔ سمبول میں پاک افغان مذاکرات کے دوسرے دور میں پاکستان کا کردم TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل درآمد پر زور۔ مطالبہ کیا طالبان عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور استنبول میں جاری ہے۔ 40 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں تجاویز کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا مشن، صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر آصف علی زرداری کے رابطے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان ایکشن۔ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ نون لیگ کی آزاد کشمیر کمیٹی میں احسن اقبال، امیر مقام اور رانا ثناء اللہ شامل۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹیاں آج اسلام آباد میں ملاقات کریں گی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطوں میں تیزی۔ حکومت کی تبدیلی وزیر اعظم کے استعفے یا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے متوقع۔ وزیر اعظم انوار الحق مستعفی ہوں گے یا ممکنہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے، فیصلہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ارکان کی مجموعی تعداد 52، حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 17، فارورڈ بلاک میں 20 ارکان اسمبلی شامل ہیں، جبکہ نون لیگ کے ارکان کی تعداد 9 ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان منگل کو کریں گے۔ آزاد کشمیر کی حکومت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے کہا نون لیگ آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بہتر گورننس میں ناکام رہے۔ ناکامی کی بڑی وجہ عوام سے دوری اور رابطہ نہ کرنا تھا۔ سیاسی لوگوں کو آگے لانا چاہیے۔ صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن اہم ترین تقاضا تھا۔ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جو ایپلیکنٹ تھا اس سے ہمیں معذرت کرنی پڑی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں اپلیکیشنز آ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کا دن ہے۔ عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا، وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں گیس کے گھریلو کنیکشن کھولنے کا فیصلہ۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز بحالی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2022 میں PTM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس وقت صارفین سے معذرت کرنا پڑی، مؤثر حکمت عملی سے توانائی بحران پر قابو پایا گیا۔ آج گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG کی گیس کنیکشن کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شامل۔ نواز شریف نے کہا ملک کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے، دنیا بھی شہباز شریف کی محنت کی تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا
वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म रियाद में नमी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मद्दाह थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे की तकरीब के दौरान अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कहा कि अब तक 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। मैंने तिजारत के ज़रिए जंगें ख़त्म करवाई हैं। हम जंगें नहीं तिजारत चाहते हैं। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूँ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफ़गान जंग बंदी में किरदार अदा किया। मैं दोनों ममालिक को जानता हूँ। पाक अफ़गान मसाइल जल्द हल करूँगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं। मुझे दोनों पर एतमाद है। कुआलालंपुर में आसियान समिट का आगाज़। थाईलैंड और कम्बोडिया में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। मशरकी तैमूर को आसियान की रुकनियत मिल गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा यह इलाका और यहाँ के लोग बहुत ख़ास हैं। जिस चीज़ को छूते हैं सोना बन जाती है। थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे से तवील जंग का खात्मा और लाखों जानें बचेंगी। अमरीकी सदर का थाईलैंड की मलका की वफात पर ताज़ियत का इजहार। कम्बोडिया के वज़ीर आज़म ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया। पाक अफ़गान सरहद पर 15 रोज़ से खामोशी। चमन और तुरखम पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। कशीदगी के बाद से तमाम तिजारती और ट्रांजिट सरगर्मियाँ बंद। दोनों जाने 5000 कंटेनर्स को सरहद खुलने का इंतज़ार। दो तरफा तिजारत मुअत्तल होने से ताजरों को शदीद नुकसान। मौसमी माहिरीन के मुताबिक दोनों जानिब तकरीबन $10 लाख रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। हंगू में पुलिस लाइन पर हमला नाकाम। बनू में 20 किलो वजनी बम नाकारा बना दिया गया। हंगू में दहशतगर्दों का बख्तू पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में पुलिस का एक जवान जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी। उधर बनू के इलाके मासूमाबाद में 20 किलो वजनी बम बरामद। फितनाल खवारिज ने देसी साख्ता बम सड़क किनारे नस्ब किया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की बरवक्त कार्रवाई। बम नाकारा बना दिया गया। डीपीओ बनू का कैंट पुलिस और बीडीएस टीम को खराज तहसीन। पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं। 40 बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ गई हैं और 30 आ रही हैं। वफाक सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा पहले कानूनी तरीके से हक मांगेंगे फिर सड़कों पर निकलेंगे। मेरा पहला मकसद अमन और पुलिस पर इन्वेस्ट करना है। काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि डिलीवर कर सकें। जम अजला में तमाम रीजन्स के लिए इक़दाम कर रहे हैं। करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। जो पकड़ा गया घर जाएगा। बैनुल सूबाई सतह पर गंदम या आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आला KP पास्को या बैरून मुल्क से गंदम खरीदे। सियासी नारों और मौला जट वाली भड़कों से अवाम के चूल्हे नहीं जलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हर शहरी के लिए आटे की दस्तयाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया। यही अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी है जो दूसरों को हज़म नहीं हो रहा। अगर खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई है तो वो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से ख़रीदारी करें। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियात तमाशों पर कुर्बानी नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज़्यादा फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला KP डियाला के बाहर एहतजाज के बजाय फ्लोर मिल्स चलाने पर तवज्जो दे ताकि अवाम को आटा मिल सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और काम अमरीकी सफ़ीर की अलहदा मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपनी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की हिदायत भी जारी। NA 96 से बिलाल बदर चौधरी को पार्टी टिकट जारी। NA 104 से राजा दानियाल रियाज जबकि NA 143 से मोहम्मद तुफैल जट को नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया गया।
PP 203 से मोहम्मद हनीफ चट और PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम को पार्टी टिकट जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत स्मोक के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा है। स्मोक गन से फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी हुई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने स्मोक गन्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, पहले स्मोक बढ़ने पर 3 माह के लिए स्कूल और रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाता था। पंजाब हुकूमत माहौल को पूरी तरह साफ़ सुथरा बनाने के लिए पुरअज़म है। लाहौर डिवीज़न में कहीं भट्टों से काला धुआं निकलता नज़र नहीं आएगा। स्मोक के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़िज़ाएं इंतहाई आलूदा। हुकूमत और महकमा माहौलियात के इक़दामात के बावजूद लाहौर की फ़िज़ाएं ज़हर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 388 रिकॉर्ड। माहिरीन ने लाहौर की फ़िज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। स्मोक की शिद्दत बढ़ने पर पंजाब में सरकारी और निजी स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। कल से स्कूल पीर से जुमेरात तक सुबह 8:35 से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मा के रोज़ स्कूलों में 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नए औकात-ए-कार का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दामात। पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम। सूबा भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल। स्पेशल तलबा के दाखिलों के लिए डोर टू डोर मुहिम भी कामयाबी से हमकिनार। 5,000 से ज़ायद नए दाखिले। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 ख़ुसूसी कोर्सेज़ का इजरा। पहली 50 पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ की 8 लैब्स को जदीद खतूर पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। उच्च शरीफ में कराची पुलिस के तशद्दुद से जाबाग 16 साला इरफान की नमाज जनाजा अदा। उर्सा का हुकूमत सिंध और आला हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, इरफान कत्ल केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाए। अगर कातिलों को सज़ा ना मिली तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। रहीम यार खान में ज़्यादती का शिकार लड़की इंसाफ के लिए 100 फीट बुलंद टैंकी पर चढ़ गई। खुदसोजी की धमकी। लड़की के वालिदा का कहना था कि मुल्ज़िम मसला के जोर पर ज़्यादती करता रहा। नाजेबा वीडियोस भी बनाई। पुलिस मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुल्ज़िम ने नशावर गोलियां देकर वालिद और वालिदा की बरहना वीडियोस भी बनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 घंटे बाद लड़की को उतार लिया गया। रूस का नए जौहरी क्रूज मिसाइल बोरिवेस्टनिक का कामयाब तजुर्बा। खबर एजेंसी के मुताबिक नया मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक फासला तय करने और तकरीबन 15 घंटे तक प्रवास करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को शिकस्त देकर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ये एक मुनफरिद हथियार है और अभी दुनिया में किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं। ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात से कबल बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी और चीनी हुकाम की तस्दीक। चीन के आला हुकाम तजारती मुज़ाकरात का कहना है कि कुआलालंपुर में होने वाली मुलाकातों के दौरान चीन और अमरीका के मौशी हुकाम मुख्तलिफ मामलात पर इब्तदाई इत्तफाक राय तक पहुँच गए। मुज़ाकरात में बाहमी तजारती जंग में नरमी और स्मगलिंग से मुताल्लिक़ ताउन और हाई टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसे मामलात पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग मुलाकात में इसी फ्रेमवर्क से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जुमेरात को जनूबी कोरिया में होगी। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को धमकी। अपने बयान में सदर ने कहा कि अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखेंगे। सदर ट्रंप का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसिर क़याम। अमरीकी कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। कहा कि गज़ा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। ज़रूरत पड़ी तो कतर गज़ा में अमन फ़ौज भेजने को तैयार है।
اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، صہیونی طیاروں کی نصیرات میں بمباری، ایک فلسطینی شہید، 6 زخمی، غزہ میں روزانہ 600 ٹرکوں کے داخلے کا وعدہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔